السلام علیکم ناظرین، 4TV کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حکومت کی مزدور اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف آج بڑے پیمانے پر بھارت بند، ملک کی 10 بڑی ٹریڈ یونین کر رہی ہیں احتجاج کی قیادت۔ ہڑتال میں 25 کروڑ سے زائد اراکین کی شرکت۔ اسکول کے اوقات میں تبدیلی کے فیصلے پر موسم کی پیشن گوئی اور والدین کے تاثرات کے پیش نظر نظر ثانی کا امکان، ریاستی وزیر تعلیم سکینہ اتو کا بیان۔ سوگام کپواڑہ میں دہشت گردی کے کارندوں اور ان کے حمایتی ڈھانچوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ کالعدم دہشت گرد تنظیموں حزب المجاہدین اور جماعت المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈروں کی جائیدادیں ضبط۔ جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار نے موسم کی تازہ ترین پر دی بریفنگ۔ کل بھی بارش کے ہیں امکانات۔ اور 3 روزہ قومی آؤٹریچ ایونٹ کا آج سے آغاز۔ اہم اسکیموں، سائنسی اور تکنیکی ترقیوں اور وزارتوں میں شعبہ جاتی کامیابیوں کو عوام تک پہنچانا نمائش کا مقصد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں حکومت کی مزدور مخالف اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف آج بڑے پیمانے پر بھارت بند کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ملک کی 10 بڑی ٹریڈ یونین کر رہی تھیں۔ اس ہڑتال میں 25 کروڑ سے زیادہ کارکنان نے شرکت کی۔ ان مظاہرین کا تعلق بینکنگ، انشورنس، کوئلہ، کانکنی، تعمیرات، ہائی وے، ریلوے اور دیگر شعبوں سے بتایا گیا۔ یہ بھارت بند دراصل ایک ٹریڈ یونین بند ہے، جسے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہڑتال کا مقصد مزدوروں کے حقوق کو لاحق خطرات، لیبر قوانین میں تبدیلی، سرکاری اداروں کی نجی کاری، کانٹریکٹ پر نوکریوں کا فروغ اور بڑھتی بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ حکومت کی مزدور اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف 25 کروڑ ملازمین سڑکوں پر ہیں۔ ملک بھر میں 25 کروڑ سے زائد ملازمین کی ہڑتال، ٹرانسپورٹ، بینکنگ اور ڈاک خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ یونین نے لیبر قوانین، پرائیویٹائزیشن اور بے روزگاری کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے بھارت بند کا اعلان کیا۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتہ میں کمیونسٹ جماعتوں کی جانب سے بند منایا گیا۔ مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلائے، جبکہ پولیس آگ بجھاتے ہوئے دیکھی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت معاشی اصلاحات پر زور دے رہی ہے، جس سے مزدوروں کے حقوق کمزور ہو رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکول کے اوقات میں تبدیلی کے فیصلے پر موسم کی پیشن گوئی اور والدین کے تاثر کے پیش نظر نظر ثانی کا امکان ہے۔ بارہمولہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سکینہ اتو نے اس کی وجہ ہونے والی تکلیف کو تسلیم کیا، لیکن ابتدائی فیصلوں کا دفاع کیا اور شدید گرمی کو بنیادی وجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں کیونکہ ہم سب ایک طویل عرصے سے بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ہیٹ ویوز اس سطح پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کشمیر میں اس سے پہلے شاید و نادر ہی یہ تجربہ ہوا ہے۔ شکر ہے کہ موسم میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ صبح سویرے کا شیڈول خالصتاً طلباء کو گرمی سے متعلق تکلیف سے بچانے کے لیے نافذ کیا گیا تھا، جبکہ اس بات کو یقینی بنایا گیا تھا کہ ان کا تعلیمی کیلنڈر متاثر نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ارادہ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ان کی تعلیم کو نقصان نہ پہنچے۔ چونکہ تعلیمی سیشن پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے ہم مزید خلل کو کم کرنا چاہتے تھے۔ آ گئے ہیں، موسم میں کافی تبدیلی آئی ہوئی ہے، اور اب جو یہ ٹائمنگ جو صبح مارننگ کی ہم نے رکھی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ آلریڈی ایکیڈمک سیشن بھی چینج ہوا ہے۔ ایگزامز اکتوبر نومبر میں آ رہے ہیں۔ اب 2 ہی مہینے اگست سپٹمبر، کیونکہ ابھی تو ہم مڈ جولائی میں آ گئے،
بچے ہیں پڑھائی کے، تو اس لیے ہمیں یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا. لیکن بہت سارے اس میں سجیشنز آ رہے ہیں، ڈیمانڈ آ رہی ہیں کہ ٹائم کو تھوڑا سا ریوزٹ کیا جائے، اور میں نے آلریڈی آفیسرز سے بات کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بیٹھیں گے ہم. پھر جو بھی بچوں کے لیے اچھا ہوگا، یا ہمارے جو بھی سٹاف ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جو ان سب کے لیے اچھا ہوگا، کنوینئنٹ ہوگا، اور بچوں کی پڑھائی جس سے زیادہ ہو سکے وہ ضرور کریں گے. اس میں کوئی ڈاکٹرز کی کمی یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، کیونکہ ایک سال میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے، جہاں 6 سال میں ڈاکٹر نہیں ہے، جہاں 6 سال میں آپ کا میڈیکل اسسٹنٹ نہیں ہے، جہاں 10 سال میں آپ کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ 1 یا 8 مہینے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو سرکار بنی ہے، اس سرکار نے شروع سے ہی یہی کوشش کی ہے، چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، یا باقی ڈپارٹمنٹس ہو، ان ڈپارٹمنٹس میں سدھار آ سکے. اور اس کی مثال یہ میں آپ کو دوں گی، جب یہ سرکار بنی، جو ہمارے بچے جنہوں نے ڈگریاں کمپلیٹ کی تھی، ان کو پہلے تو 309. पुलिस ने बुध के रोज कहा है कि सोगाम कुपवाड़ा में दहशतगर्दी के कारिंदों और उनके हिमायती ढांचों के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी अस्करत पसंदों के हैंडलर और कलअदम दहशतगर्द तंजीमों हिजबुल मुजाहिदीन और जमातुल मुजाहिदीन के आला कमांडर की जायदादें जब्त कर ली हैं. पुलिस ने कहा है कि ये कार्रवाई मुलजिम गुलाम रसूल शाह उर्फ राफे रसूल शाह वल्द अब्दुल जब्बार शाह के खिलाफ की गई, जो कि पीर महल्ला चंदीगाम लौलाब का रहने वाला बताया गया. शाह, जो इस वक्त सरहद पार से काम कर रहा है, कई सालों से खित्ते में अस्करत पसंदों की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने और सहूलत फराहम करने में सरगर्म अमल है. तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि कानूनी कार्रवाई के तहत पीर महल्ला चंदीगाम में मुलजिमान की 5 किनाल और 3 मरला अराजी गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट UAPA के सेक्शन 25 के तहत जब्त कर ली गई. तजुर्बेकार ट्रेड यूनियन लीडर और CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत के नए लेबर कोड्स की सख्त मुखालिफत की. मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों और मुलाजमीन की तंजीमों की तरफ से बुलाए गए मुल्क गिर बंद के तनाजुर में बात करते हुए तारिगामी ने नई मजदूर इस्लाहात को कॉरपोरेट नवाज और मुखालिफ कारकुन करार दिया. इन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए 4 लेबर कोड्स मजदूरों के हकूक़ को कमज़ोर करते हैं, ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों को दबाते हैं और तवाज़ुन को उजरों के हक़ में बहुत ज़्यादा झुका देते हैं. तारिगामी ने कहा है कि ये ज़ाब्ते मेहनत कश तबके के मुश्किल से जीते हुए हकूक़ पर हमला है और उनका मकसद मुस्तकिल मुलाजिमतों को गैर महफूज मुलाजिमतों में तब्दील करना है. साबिक़ MLA ने हुकूमत पर भी तनकीद की कि वो ट्रेड यूनियनों और स्टेक होल्डर्स के साथ मुनासिब मुशावरत के बगैर कानून साजी को आगे बढ़ा रही है. ने यहाँ तक तशरीफ़ लाया बहुत मुख्तसर नोटिस में. आपको मालूम ही होगा कि आज पूरे मुल्क में जो बड़ी ट्रेड यूनियंस प्लेटफार्म्स हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग क्लास के और फेडरेशंस एक साथ मिलकर उन्होंने फैसला लिया था 9 जुलाई आज का दिन जनरल स्ट्राइक करने का अपने मुतालिबात के हक़ में. मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक ट्रेड यूनियन हिस्ट्री का ताल्लुक़ है पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में भी स्ट्राइक करने का हक़ अधिकार बड़ी लड़ाइयों के बाद मिला है, शिकागो से लेकर आज तक हर सतह पर. और हमारा भी हिस्सा है इस जद्दोजहद में. ज़ालनगर के हमारे मज़दूरों ने बहुत पहले जद्दोजहद का परचम बुलंद किया अपनी मांगों को लेकर. और जो भी आज तक वर्किंग क्लास को, वर्किंग पीपल, जिसमें हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं.
श्री नगर के खानियार इलाके में बुध को आग लग गई, जिससे 3 भाइयों के मुश्तरका मकान को जज़वी नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने बताया कि इमारत की चौथी मंजिल पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। इन्होंने बताया कि रिहायशी मकान 3 भाइयों का है और आग लगने से बालाई मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि निचली मंजिल के कुछ हिस्से भी मुतासर हुए। मुकामी रिहायशियों और पुलिस टीमों की मदद से फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने आग के मज़ीद फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया। कई दिनों के इंतहाई गर्म मौसम के बाद जम्मू कश्मीर में आखिरकार कुछ बारिश होगी और अगले 2 दिनों में दर्जा हरारत में कमी आएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और फ़ाल मानसून हवाएं ये तब्दीली ला रही हैं। ये खित्ते के कई हिस्सों में बारिश का सबब बन सकती हैं और दिन के वक्त के आला दर्जे हरारत को कम करने में मदद करेंगी। अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। महकमे ने खबरदार किया है कि कुछ जगहों पर शदीद बारिश या बादल फटने के भी इम्कानात हैं। साल के इस वक्त दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा। पेशन गोई में यह भी कहा गया है कि बास मुकामात पर तेज़ हवाएं और ज़ालाबारी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था बारिशें खासकर आज मॉर्निंग से ही शुरू हुई और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है कुछ एक मकामात पे, और साउथ कश्मीर के अंदर इंटेंस शावर्स भी हो रहे हैं कुछ एक मकामात पे, और इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी बारिशें करंटली शुरू हुई हैं। तो इंटरमिटेंटली आज थोड़ा सा रहेगा बारिशें डे टाइम में भी, और मौसम जो है अमूमन क्लाउडी रहने के चांस हैं। फिर कल भी जो है खासकर आज लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में बारिशें फिर से चांसेस हैं खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और यहाँ वैली के अंदर भी। और इस बीच जो है कुछ एक मकामात पे इंटेंस शावर्स, कुछ एक जगहों पे हैवी रेन शावर्स के भी चांसेस हैं। फिर 11th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा और चेंज होगा। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है जनरली रहेगा क्योंकि रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा सबसाइड होगा, और फिर 14 से एक बार फिर जो है रेनफॉल एक्टिविटी फिर से शुरू होगा खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर, और यहाँ वैली के अंदर भी जो है लाइट रेन थंडर शावर एक्टिविटी जो है देखा जा सकता है। तो ओवरऑल फिलहाल 1-2 दिन रहेगा भी ये वेट स्पेल। फिर 11th ऑनवर्ड्स फिर से जो है थोड़ा गर्मियाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी। 14th ऑनवर्ड्स मौसम जो है फिर से चेंज होगा, दर्जा हरारत में फिर से जो है कमी देखी जा सकती है। लैंडस्लाइड का देखो अभी मुसलसल बारिशें हो रही है, पिछले 1-2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा खतरात बनते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे जो है शूटिंग स्टोन्स के भी चांस हैं, मड स्लाइड्स के भी चांस हैं, फ्लैश फ्लड्स के भी चांस हैं, कहीं पे इंटेंस शावर्स हो रहे हैं इस टाइम। उसके कारण क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट और फ्लैश फ्लड्स जो है जनरेट हो सकते हैं, जिसके कारण जो है जो पहाड़ी इलाके हैं या डाउन द स्ट्रीम जो लोग रहते हैं काफ़ी पानी का बहाव जो है देखा जा सकता है, और उसके साथ साथ लोकल नदी नाले हैं। 3 रोज़ा कौमी आउटरीच इवेंट का आज आगाज़ MP गुलाम अली खटाना की रहनुमाई में SKICC श्रीनगर में हुआ। त्रिमा इवेंट्स सभा के ज़रिए एहतमाम नुमाइश का मकसद हुकूमत की अहम स्कीमों, साइंसी और तकनीकी तरक्कियों और वजारतों में शोबे जाती कामयाबियों की नुमाइश करना है। कि कश्मीर के नौजवान, कश्मीर का एंटरप्रेन्योर, कश्मीर का स्टार्टअप वाला नौजवान वो भारत एक उभरती मईशत है उसका हिस्सा कैसे बने, और 10, 11, 12 को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा एक इवेंट का इनॉग्रेशन है, वो कल होगा। भारत देश में जितनी भी इनोवेशंस हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो टूरिज्म हो, वो स्पेस हो, वो हेल्थ हो, इसरो, DRDO से लेकर और सभी जो इनोवेशंस के भारत में प्रोग्राम चलते हैं, वो कश्मीर के SKICC में अगले 3 दिन 10, 11, 12 को यहाँ कश्मीर प्रोविंस के जो नौजवान बच्चे हैं, स्कूल के, कॉलेज।
मौसम के उतार चढ़ाव के दरमियान मौसमी बीमारियों में भी इस साल इजाफा देखा गया। राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक अहमद ने सूरत हाल पर तफसीलात बतलाई। इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मौसम में अचानक तब्दीली ने पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलाव के लिए माहौल को साजगार किया है, जिसके नतीजे में इस साल केसेस में इजाफा हुआ है। महकमे सेहत सरगर्मियों से सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और इस इजाफे से निमटने के लिए इक़दामात नाफिज किए हैं। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल पुंछ बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने में जो है हमारा जून का महीना था और उसमें ना खुश्क गर्मी थी, तो खुश्क गर्मी के कारण जो है काफ़ी जो है हीट स्ट्रोक के केसेस हमारे पास आते थे, जिनको हमने मैनेज किया हमारे हॉस्पिटल में, उनको हमने इलाज किया, ठीक किया और घर भेजे। लेकिन अब ये जुलाई का महीना शुरू हो गया है, ये बारिशों का महीना है और इस महीने के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना जो केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। बच्चों के लूज मोशन के, ठीक है ना, नौजवानों के लूज मोशन के, बुजुर्गों के जो हैं, मर्द औरतों के जो लूज मोशन के केसेस आ रहे हैं। तो इसको ये जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस अभी इस वक्त फैला हुआ है रेनी सीजन में, तो इसके जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं तो इनका हम आजकल इलाज कर रहे हैं। इन लोगों को हम जब भी ऐसे मरीज हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की इमरजेंसी में आते हैं, इनको हम प्रॉपर जो है इनको ग्लूकोज वगैरह लगा के, इनको एंटीबायोटिक जो है इंजेक्शन वगैरह हम लगा के तो इनको कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद जो है इनको हम जो है दवाइयाँ लिख के देते हैं, ताकि ये जो लूज मोशन की जो प्रॉब्लम है, जो इस वजह डायरिया की प्रॉब्लम है, कि जो है उनको ठीक किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुलवामा ने टाउन हॉल पुलवामा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें ज़िले भर के सैकड़ों अरकान की पुरजोश शिरकत देखी गई। कांग्रेस के सीनियर कायद बशमूल बशीर अहमद मागरे, अब्दुर्रहीम राठर, ज़िले सदर उमर जान और ख़वातीन विंग की लीडर शमीमा रायना ने इज्तिमा से खिताब किया। हम पुलवामा के लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं, जो ये हमारी रियासत, हमारा हक है, ये हर जगह हुआ है। जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्टों में हुआ है और कश्मीर में भी हो रहा है। पिछले दिनों हमारी महिला कांग्रेस ने भी पार्टी के हेडक्वार्टर पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इनेकाद किया था, एक मंडे कन्वेंशन किया था, कि ताकि हमें जो हमारी रियासत है, हमारा हक है, जो वापस मिले। अब पता है हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट था, हमारे पास आज डोमिसाइल बनाया गया। आज बाहर के लोग यहाँ पे जिसको भी चाहे वो डोमिसाइल बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं। पहले की जो वादे किए गए हैं आवाम के साथ, वो वादे पूरे किए जाए और हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये वादे पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेट को बहाल किया जाए, यहाँ की चुनी हुई सरकार को वो इख्तियारात दिए जाएं, ताकि वो ये जो मसले हैं और जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए हैं वो पूरा कर पाए। मुनासिब वक्त उनके लिए तब होता है जब यहाँ से हमारे कुछ हुकूक छीनने होंगे, उसके लिए उनके पास हमेशा मुनासिब वक्त होता है। और जब यहाँ देने की कोई बारी आती है, हमारे लिए हमारे लोगों के मसले जब उनके पास ले जाते हैं, उस वक्त वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। ये मुनासिब वक्त क्या टर्म है उनकी, वही जानते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि उनसे हम कोई उम्मीद अच्छाई की नहीं रखते हैं। लेकिन अब हम उनको सिर्फ एक चीज़ याद दिलाते हैं कि आपने बारहा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी वादे किए हैं लोगों के साथ, और हिंदुस्तान के अवाम को आपने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को। क्यों नहीं दिया जा रहा है अभी तक? और पहली बात ये है कि बदकिस्मती है कि पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये कहीं भी नहीं है कि किसी स्टेट को तोड़ के उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया जाएगा। और अब हुकाम ने बताया कि बुध के रोज़ जम्मू कश्मीर के पुंछ में डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर कैदियों और सिक्योरिटी एहलकारों के ग्रुप के दरमियान झड़प में एक कैदी ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कश्मीर से कुछ ज़ेर समाज जमा हुए थे और अपने लिए अलग बैरक का मुतालबा करने लगे थे। इन्होंने कहा कि जेल हुकाम ने उन्हें अपनी बैरकों में वापस जाने के लिए ख़ायल करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। हुकाम ने बताया कि उनमें से एक जनूबी कश्मीर के शुपियाँ के आदिल हामिद डार, जो गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट से मुतालिक एक मुकदमे का सामना कर रहा है, को उस वक्त चोटें आईं जब वो इस वक्त गिर गया जब सिक्योरिटी अमला अमन बहाल करने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने बताया कि ज़ख्मी कैदी को पुंछ के ज़िले अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत मुस्तहकम बताई गई।
عہدیداروں نے بتایا کہ بعد ضلع جیل میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حکومت کی مزدور اور کسان مخالف پالیسیوں کے خلاف آج بڑے پیمانے پر بھارت بند، ملک کی 10 بڑی ٹریڈ یونین کر رہی ہیں احتجاج کی قیادت۔ ہڑتال میں 25 کروڑ سے زائد کارکنان کی شرکت۔ اسکول کے اوقات میں تبدیلی کے فیصلے پر موسم کی پیشن گوئی اور والدین کے تاثرات کے پیش نظر نظر ثانی کا امکان۔ ریاستی وزیر تعلیم سکینہ اتو کا بیان۔ سوگام کپواڑہ میں دہشت گردی کے کارندوں اور ان کی حمایتی ڈھانچوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ کالعدم دہشت گرد تنظیموں حزب المجاہدین اور جماعت المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈروں کی جائیدادیں ضبط۔ جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار نے موسم کی تازہ ترین تازہ کاری پر دی بریفنگ۔ کل بھی بارش کے ہیں امکانات۔ اور 3 روزہ قومی آؤٹریچ ایونٹ کا آج سے آغاز۔ اہم اسکیموں، سائنسی اور تکنیکی ترقیوں اور وزارتوں میں شعبہ جاتی کامیابیوں کو عوام تک پہنچانا نمائش کا مقصد۔ اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر اختتام کو پہنچی۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔